Students, now we discuss on real numbers. Last year we have seen rational and irrational numbers. Now we see real numbers. Before going to discuss on real numbers, we discuss on other numbers. ये नंबर रियल नंबर पे चर्चा करने के पहले हम कुछ नंबर्स जो है पिछले साल पढ़े हम 8th में उस पे चर्चा करते हैं. हमने पढ़े हैं वी हैव सीन लास्ट ईयर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर्स, ये सारी चीजें हम पढ़े. इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, हम उसको और एक बार रिवाइज करते हैं. नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1. It is a counting number. These numbers are used for counting the things. This is a infinite set. It starts from 1 and never end. Therefore, this is infinite set. Natural number means counting numbers. Those numbers are used for counting the things. That is a natural numbers. Now we are going to discuss on whole number. Whole number is what? If 0 is added in natural number, it become whole number. Whole number क्या होता है? यदि हम नेचुरल नंबर में 0 मिला ले तो it become whole number. whole number बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है? सिर्फ इसमें एक 0 ज्यादा है. 0 is more. अब देखते हैं इंटीजर मीन्स इंटीजर 0, you start from 0, 1, 2, 3 dash -1, -2, -3 dash. Integers means natural number, 0 and negative of natural numbers. It is a set of whole number and negative of natural numbers. इसमें भी फ्रैक्शन नहीं होता. Now we see rational number. Rational number is P upon Q such that PQ belongs to I. PQ belongs to I. Q, small q, belongs to I means integer and q not equal to 0. Now what is rational number? Rational number means P upon Q and PQ belongs to integer. P and Q must be integer and Q not equal to 0. Then P upon Q is a rational number. And then real number. Real number means rational number and irrational number. Rational number and irrational numbers. The set of rational and real number is a set of rational number and irrational number. तो rational numbers and irrational numbers से जो सेट बनता है that is a real number. अब और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पे. नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर. होल नंबर, 0 is added in natural, it become whole number. Integers, whole number and negative of natural number. अब ये Q is a rational number. तो all natural numbers are rational number, whole number are also rational number and integers are also rational numbers. Why? Because every digit has, यदि हम 1 लेते तो 1 डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में 1 होता है. This number also can write in P upon Q form. इसे भी सभी नंबर को हम P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं. इसलिए इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर ऑल आर रैशनल नंबर. तो ध्यान में रखना है natural number is a subset of whole number, is a subset of integer, is a subset of rational number.
रैशनल नंबर इस सबसे बड़ा सेट है और नेचुरल नंबर इनमें सबसे छोटा सेट है। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज अ subset of rational number. Natural number is a subset of all these numbers. Whole number is a subset of integers and rational number means natural number ये सेट जो है इस सेट से छोटा आता है और सबसे बड़ा सेट जो है वो रैशनल नंबर का आता है अमॉन्ग दीज नंबर्स। नाउ इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल नंबर। ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? यदि इफ P upon Q and R upon S are rational numbers, क्या है ये? रैशनल नंबर्स। Q greater than 0 and S greater than 0, क्या होना? Q greater than 0 है और S greater than 0 है। यदि ऐसा दिया है हमको, ये नंबर है ये नंबर P अपॉन Q में कुछ भी एक ले लिया, 3 अपॉन 4 है, मान लो यहाँ 5 अपॉन 7 है, तो R is greater than 0 and 7 is also greater than 0। यदि ऐसा है then what happened? If तीन कंडीशन है यहाँ पे, if P Q greater than 0, R greater than 0, then we can identify which rational number is greater and which is smaller। उसके लिए करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, and न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड रैशनल नंबर मींस P मल्टीप्लाइड बाय S एंड Q मल्टीप्लाइड बाय R। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। यदि ये इक्वल आता है, इफ दिस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू दिस मल्टीप्लिकेशन देन बोथ रैशनल नंबर्स आर इक्वल। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ then if P multiplied by S greater than Q multiplied by R, then first rational number is greater than second rational number। अब थर्ड देखते हैं हम, if P multiplied by S less than Q multiplied by R, then second rational number is greater than first rational number। So these are the three conditions when we check which rational number is greater, equal or smaller। तो ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन हमें ध्यान में रखना है ड्यूरिंग टू फाइंड आउट द ग्रेटर और स्मॉलर रैशनल नंबर। देन आफ्टर दिस we discuss on properties of rational numbers। properties of rational numbers। प्रॉपर्टीज पहली है एडिशन, और साथ में देखते हैं, दोनों साथ में देखेंगे, जरा अच्छा समझ में आएगा। दो प्रॉपर्टीज है, एक एडिशन की है और एक मल्टीप्लिकेशन की है। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स if A plus B equal to B plus A, means 3 plus 4 equal to 4 plus 3 होता है। A means any number, B means any rational number, B A rational number इधर उधर लिखो, एडिशन में फर्क नहीं पड़ता। वैसा ही मल्टीप्लिकेशन में भी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका भी नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। A मल्टीप्लाइड बाय B इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय A मीन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। नो चेंज इन देयर रिजल्ट। सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ इफ A प्लस B, A ब्रैकेट में है तो A प्लस B प्लस C करो, नो चेंज।
यदि ऐसा दिया है 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5, नो चेंज। वैसे यहां भी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इफ मीन्स a multiplied by b multiplied by c equal to a multiplied by b in one bracket। यदि इसे ब्रैकेट में लिखे, बाद में ये दोनों को ब्रैकेट में लिखे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? नो चेंज। यदि इसे ब्रैकेट में लिखो, बाद में ये दोनों को ब्रैकेट में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखते हैं हम आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, और इधर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Additive identity means if 0 is added, no change in that number. 0 मिलाओ, 0 is additive identity है। Identity of addition क्या होता है? 0, 0 प्लस है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, नो चेंज ऑन नंबर। कब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जिस नंबर से ऐड करने पे वो रैशनल नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। अब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है क्या मिलाओ तो 0 आता है। ये है, ये इज रैशनल नंबर, देन व्हाट वी गेट? माइनस ए मिलाएंगे तो क्या आएगा? 0। यदि 3 है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? -3 इज एडिटिव इनवर्स। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। यदि यहाँ पे -5/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5/3। एडिटिव इनवर्स में जो ऐड करने पे अपने को सम 0 आती है, दैट इज द एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। यदि 3 नंबर दिया है तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1/3। यदि -1/5 दिया है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -1/5 दिया है तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -5। तो -1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा? -5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/a। क्या मिलता है हमें? 1। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a और ए का एडिटिव इनवर्स -a। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद 2.1 की तैयारी करते हैं। 2.1 की तैयारी करने के पहले थोड़ी 1-2 बातें ध्यान में रखना है जो हमारे बुक में लिखी है। पेज नंबर 21 पे 2 पॉइंट दिए हैं। रिमेंबर दिस, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट, हमको यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है रैशनल नंबर, वो पहचानो। आइडेंटिफाई दिस रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है राइट द रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अब थर्ड क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म में दिया है तो P/Q फॉर्म में लिखो। कैसे? 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई वेदर दीज रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। सेकंड क्वेश्चन क्या है? जो रैशनल P/Q फॉर्म में दिया है तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिखो। और थर्ड उसका उल्टा है, क्या है?
डेसिमल फॉर्म में दिया है तो उसे P अपॉन Q फॉर्म में लिखो। तो हमें ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन करेंगे, एक दो प्रॉब्लम करेंगे और यहाँ अपना वीडियो खत्म करेंगे। तो पहले टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के पहले, ये तीनों क्वेश्चन करने के पहले जो 2 पॉइंट लिखे हैं रिमेम्बर दिस, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसमें पहले पॉइंट में लिखा है यदि इस प्रकार का, यदि यहाँ पे डॉट है, डॉट मीन्स डॉट डिनोट द रिकरिंग डिजिट, यहाँ डॉट है मीन्स 3 कमिंग कंटिन्यूअसली, यहाँ 3 आने वाला है, ये कंटिन्यूअस आने वाला है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं लिखते हुए यहाँ क्या देते हैं, इसके ऊपर डॉट देते हैं और इसको कहते हैं रिकरिंग डिजिट। तो यदि एक रिकरिंग डिजिट है तो मल्टीप्लाइड 10 करना है। when we convert this into P upon Q फॉर्म, तो हमें एक रिकरिंग डिजिट के लिए कितना करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। यदि 2 रिकरिंग डिजिट है, यदि 2 है इसलिए हम बार से डिनोट करते हैं, 2 बार डॉट नहीं लगाते, क्या करते हैं, बार से डिनोट करते हैं। दिस मीन्स दैट कि 1.24 बार बार आ रहा है, 24 यहाँ पे रिकरिंग डिजिट है। तो यदि 2 रिकरिंग डिजिट है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। यदि 3 रिकरिंग डिजिट है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्या है, काय के लिए, जब अपन P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है, रिकरिंग डिजिट कितने हैं वो देखना है। यदि 1 है तो मल्टीप्लाइड बाय 10, यदि 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यदि 4 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, यदि 5 रिकरिंग डिजिट है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। तो इस प्रकार 0 बढ़ते जाता है। कितने कैसा करना है उसको, अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी रिकरिंग डिजिट्स आर इन गिवन प्रॉब्लम। तो ये पहला तो इसी पे दिया है, फर्स्ट जो पॉइंट दिया है मैंने रिमेम्बर दिस के लिए बोला, तो ये पहला पॉइंट यही है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है टर्मिनेटिंग टाइप है कि नहीं, ये ढूंढने के लिए। 1/125 यदि डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग टाइप है, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, हम ये रैशनल नंबर को देके बराबर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे रिमेम्बर दिस में दूसरा पॉइंट दिया। क्या बोला है उसमें, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 और 5, ध्यान में रखना। क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर को तो देखना ही नहीं। जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये रैशनल नंबर्स है, ये यदि पहचानना है तो हमको न्यूमरेटर को देखना ही नहीं है, किसको देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। और डिनोमिनेटर देखना है, इट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और 5। यदि ये प्राइम फैक्टर्स 2 के है या 5 के है, देन यदि 2 और 5 के है तो वो टर्मिनेटिंग टाइप के होते हैं। यदि जिसका डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होते हैं। तो सेकंड पॉइंट को लिख लेना है बच्चों अच्छे से कॉपी में, और उसको पढ़ना है 2-3 बार, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है कि नहीं ये पहचानने के काम में आता है। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, सी ओनली डिनोमिनेटर। इफ द नंबर इन डिनोमिनेटर हैव prime factors 2 or 5, then that rational number is terminating type, otherwise non-terminating type। जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया है, यहाँ प्राइम फैक्टर क्या है, 7, 2 है क्या, नहीं। यहाँ है प्राइम फैक्टर 2, मीन्स इसको हम A2 कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2। और यहाँ पे भी 7/125 है, तो इसको भी कैसा लिख सकते हैं हम, 3 बार। प्राइम फैक्टर्स क्या है डिनोमिनेटर के, 5।
यहाँ प्राइम फैक्टर्स क्या है डिनोमिनेटर के 2, देयरफॉर दीज two rational numbers are terminating type and this rational number is non-terminating type. अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स दिए हैं। पहला है 13/5, क्या है यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is 5, प्राइम फैक्टर क्या है इसका 5, therefore 13/5 is a terminating type. कैसी है ये टर्मिनेटिंग टाइप, ऐसा लिखना है इसका आंसर। यदि हम 11/6 लेते हैं तो यदि इसके फैक्टर भी बनाते हैं तो प्राइम फैक्टर है क्या, नहीं है। प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है क्या, नहीं। हमको प्राइम फैक्टर क्या होना, डिनोमिनेटर के सिर्फ 5 होना और 2 होना, लेकिन यहाँ क्या आया है 3, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप होगा क्या, नहीं। प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is not 2 or 5, therefore 11/6 is not terminating type rational, terminating type। इस प्रकार के आंसर लिखना है। ऐसे हमको कितने क्वेश्चंस दिए हैं, 5 सब क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में यू कैन डू रिमेनिंग प्रॉब्लम सेल्फ, है ना, 2 महीने करके दिए, ऐसे ही बाकी के 3 करना है। बस हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है और लिखना है। डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर्स यदि 2 और 5 है, 2 and 5, देन टर्मिनेटिंग टाइप, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है P/Q फॉर्म में है, कन्वर्ट देम इनटू डेसिमल्स। अब वो डिवीजन तो हम पहले से करते हैं, दूसरी तीसरी चौथी से हम डिवीजन करते आए, तो इसमें भी सब क्वेश्चंस है 5। पहला करता हूं और थर्ड करता हूं, कोई भी। फर्स्ट है 1 2 7 200। अब देखो ये 1 to 7 बड़ा छोटा है, यहाँ 0 बढ़ाते हैं, 0 लिखते हैं, यहाँ पॉइंट देते हैं। 206 1200, 6 तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 70 मिलता है। तो और एक 0 देते हैं और देखते हैं क्या आता है। 203 600, क्या है यहाँ पे 100, और एक 0 देते हैं तो 205 1000। तो ये टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग टाइप है। और इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 127/200 इक्वल टू 0.635। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का पहला सब क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। वैसे तो मैंने पहले बताया टर्मिनेटिंग टाइप है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस कोई रिकरिंग डिजिट नहीं आने वाला है। सिंपल है, मैंने अभी बताया था। क्या है, 2 × 100, और ये 1 to 7, 200 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 25। तो ये क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 and 5। तो ये अपन ने जैसा पहला क्वेश्चन देखे, ये करने की जरूरत नहीं है, तुमको ये एडिशनल समझा रहा हूं, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 है, देयरफॉर दिस इज द टर्मिनेटिंग टाइप। तो अभी हमने बोले ना बराबर, यहाँ ये एक एग्जांपल है टर्मिनेटिंग टाइप का, जिसके प्राइम फैक्टर 2 and 5 है। करना कहां तक है, ये यहां तक, पहले डिवीजन करने का, और जो आया क्या है 0.635। अब थर्ड करता हूं मैं। थर्ड है 23/7।
23, this is a 7. तो 7 3 जा 21, 2.0, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56. सिंपल डिवीजन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, नॉट डिफिकल्ट. ये हम 5वीं 6वीं में करे वैसा डिवीजन करना है. 7 5 जा 35, again we get 5, 7 7 जा 49, 1, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2, 2 यहाँ पे दिया है ना. बाद में और 2 14 आएगा, 0 लिखेंगे 14 आएगा, फिर 60 आएगा, यानी यहाँ से और कंटिन्यूअस प्रोसेस होने वाली है. तो ये डिजिट कैसे आने वाले हैं? रिकरिंग डिजिट्स. यानी और 20 आएगा, 20 आएगा तो हम और 14 लेंगे, 7 8 56 आएगा, और यहाँ 4 आएगा. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. तो ये देखो यहाँ पे क्या मिला हमको, तो 23/7 is 3.2855714. दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग टाइप डिजिट्स. ये हम इसको देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं है, देयरफॉर ये नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला था. ये अपन इसके पहले पढ़े हैं. तो ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में. तो ये 2 क्वेश्चन किए हैं. रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ट्राई सेल्फ. अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 नाउ गोइंग टू डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म. अभी इसके पहले P/Q फॉर्म में दिया था उसको, और ये डेसिमल फॉर्म में करना था. अभी डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो काय में करना है? P/Q फॉर्म में. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 0.6 रिकरिंग डिजिट है 6. अभी मैंने बताया था, यदि एक रिकरिंग डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना. जो भी दिया है हमें उसे x = लिख लेना. बाद में कितने डिजिट है रिकरिंग? 1 है, तो मल्टीप्लाइंग बाय क्या करने का? मल्टीप्लाइंग बाय 10. 1 है इसलिए 10, तो क्या हो जाएगा? 10x = 6, ऐसा है ना. एक डिजिट सामने सरक जाएगा, ये तो इसका मतलब ऐसा ही है ना. तो when we multiplied by 10 means it become 6, और रिकरिंग डिजिट क्या आएंगे? 6 6. अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, और सेम करना है सभी के लिए, ऐसा ही करना है. यदि 2 है रिकरिंग डिजिट तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, 3 है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना है, 4 है तो मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करना है. हमको देखना है कितने रिकरिंग डिजिट है, उस हिसाब से हमको मल्टीप्लाई करना है. तो अब क्या कर, सब्ट्रैक्ट. थर्ड स्टेप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है. 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 10x - x = 6. तो ये होता है 9x = इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलता है हमको? 6. सब्ट्रैक्ट करके देखो, रफ में मिल जाएगा. 6/9 मीन्स 2/3. 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो दिस इज आवर. और एक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएंगे. अब एक करता हूं मैं, क्या? 2.514. अब यहाँ पे कितने हैं रिकरिंग डिजिट? 3. तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से.
मल्टीप्लाइंग बाई 100, इसको x बराबर x इक्वल टू ले लेना, जो भी दिया है उसे क्या लेते हैं आप, x इक्वल टू। बाद में क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 1000, 3 डिजिट है इसलिए 1000, 1 है इसलिए 10, 2 रहे तो 100, तो क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू 2514, तीनों डिजिट इधर आ जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा 514। इसको क्या बोलते हैं हम, जैसा यहाँ किया वैसा 1 बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं हम, 2 बोलते हैं। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से उनको घटाना है, 2 क्या है 1000x माइनस x इक्वल टू दिस 2514 माइनस 514। अब देखो 1000 माइनस 1 मीन्स 999 इक्वल टू, अब ये आता है 2 5 4 माइनस 2 2, ये तो 510 510 0 हो जाएगा माइनस करें तो, और 4 में से 2 गए 2 1, ये x आएगा, ये 999x, therefore x equal to 2512 upon 999. So in this way we can do in this form, p upon q form. तो बच्चों यहाँ हमारे तीनों क्वेश्चन समझा के दिया मैंने, और ट्राई टू सेल्फ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1 और प्रैक्टिस सेट 2.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।